Good afternoon again, everyone. Especially to Akshay Lakshman. Akshay bhai, welcome you all. Thank you so much. अभी अभी हम लोग ने अमित भाई को सुना. आप लोग ने बहुत कुछ उसके दिए हुए जो चीज है, माने कि एक एक जो सॉल्यूशन के लिए उसने बताया कि आपको यहाँ इन्वेस्ट करना, वहाँ इन्वेस्ट करना. खाली वर्कशॉप अटेंड करने से या वर्कशॉप सुनने से ये नहीं होता है. You have to implement in your life. And the biggest thing in India is saving. Saving always plays a vital role. तो जितना आज आप सेव करेंगे, कल आपके लिए वो खड़ा रहेगा. अगर आपके पास जेब में सेविंग के 5 रुपये नहीं है ना, then the time will be very bad in your life also. So start saving if you are not started from today onwards, because in your old days only the saving is going to help you. Nobody on this earth. कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं सभी के बेटे की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी बेटे भी ना बोल देते हैं और हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि घर में रहने को उसको. हाँ जीतू भाई. Anyway, but everybody must understand what is the ethic, I mean what is the importance in the life, and one should behave accordingly. Now we have a very good speaker, a second speaker of this session, none other than a well famous personality, Mr. Akshay Lakshman. Before he starts his speech, I would like to introduce Mr. Akshay in front of you, that Mr. Akshay Lakshman is an Indian mentalist and mind reader. Mind reader होना एक बहुत बड़ी बात होती है. So he is a very good mind reader and often dubbed as a #1 mentalist in India. Mind it very well. You just listen his biography by his vast range of Bollywood, television, and corporate audiences. He has dazzled his audiences in TV shows like India's Got Talent on Color channel, and entertainment के लिए कुछ भी करेगा on Sony also. He is the mentalist and mind reader who dazzled his audiences on TV, as I told you earlier, as well as Akshay Lakshman shows have been highly appreciated and applauded by USA, Mexico, Bangkok, Burma, South Africa, UK, Israel, and Amsterdam. So he is an international personality having a complete knowledge of his subject. When he speaks, he knows very well what he's going to talk to you. And now nothing, last but the least, he is well famous in our Bollywood. क्योंकि ज्यादा करके पूरे इंडिया में सभी को बॉलीवुड का न्यूज जानने के लिए बहुत इंतजारी होती है कि आमिर खान ने क्या किया, सलमान खान ने क्या किया, शाहरुख खान ने क्या किया, उसने दिए जलाए कि नहीं, इसने दिए जलाए कि नहीं. किसी ने यह नहीं मार्क किया कि रतन टाटा जी ने क्या किया, मुकेश अंबानी ने क्या किया. लेकिन हीरो हीरोइन की बात आती है तो अपने कान ने सभी के बराबर खुले रह जाते हैं. Anyway, everyone loves Bollywood very much. So he is also very much well famous in Bollywood, and he is accepted by Amir Khan, Mukesh Ambani, Karan Johar, Honey Singh, Anil Kapoor, Rajkumar Hirani, Vidya Balan. All have a highly admired Akshay's work. So now we are supposed to also appreciate his work, but how can we appreciate unless and until he express his views in front of us? Before he express, I request all of you, those who are present on this lovely platform of Mumbai Photographer Association, please applaud and give a big hand to Mr. Akshay Kumar. माने मैं अक्षय कुमार इसके लिए बोला कि एक नाम भी उसका बॉलीवुड से मिलता हुआ है. अक्षय जी, now mic is yours. I hope you will definitely will not disappoint to the Mumbai Photographer Association member, but you will definitely prove that what is mind and how is the mind reader works. Thank you very much. Akshay ji, please go ahead. Hello everyone, thank you so much for inviting me here. Thank you so much for everyone to be present. I hope आप लोगों को so far मजा आ रहा है. बहुत अच्छा लगा, पहले अमित जी का सेशन सुना, काफी कुछ रखना है अगले आधे घंटे के लिए.
सो हियर्स द थिंग, जैसा कि उन्होंने अब आपको बताया कि मैं माइंड रीडर हूँ, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये माइंड रीडर एग्जैक्टली अभी क्या करने वाला है आके जूम लाइव पर। तो मैं आपको बता दूं, एज अ माइंड रीडर अब मैं आप सब लोगों से बातें करूंगा, आप सबका माइंड पढ़ूंगा और मैं सबको बताऊंगा जूम पे लाइव सबके सामने बताऊंगा अगर आप अपनी वाइफ पे चीट कर रहे हो तो। नहीं भाई, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ऐसा कुछ नहीं करना। भारत जी डर गए, हाँ। ओके सर डर गए। बस ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। क्योंकि वो फिर माइंड रीडिंग नहीं होगी, वो ब्लैकमेलिंग हो जाएगी, और जी। ब्लैकमेलिंग का बादशाह मैं नहीं हूँ, मेरे पड़ोसी हैं। ओके, सो हियर्स द थिंग। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ एक छोटा आप लोगों को नमूना देने के लिए, आप लोगों के साथ में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? समथिंग सिंपल। तो आप लोग एक काम कीजिए, अपने मन में फिलहाल कोई भी एक नंबर सोच लीजिए 1 से 10 के बीच में। मुझे बताइए मत और चैट में मत लिखिए, मन में सोचिए। सोच लिया आप लोगों ने? ओके। अब जो है इस नंबर का, जो भी आपने नंबर अभी सोचा है, इस नंबर को आप इसमें 4 ऐड कर दीजिए, 4 ऐड कर दीजिए, किया। ठीक है? 4 ऐड आपने किया है, हम्म, ठीक है? एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, उल्टा कर देते हैं, वापस 0 पे आ जाइए आप सब लोग, हम्म, वापस 0 पे आ जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों के माइंड को ब्लैंक करना चाहता हूँ। ओके, अब हम शुरू से शुरू कर रहे हैं, ओके? एकदम ब्लैंक रहिए, 0 पे आ जाइए वापस। अब कोई एक नया नंबर सोचिए 1 से 10 के बीच में। सोचा? भैया, तो ये जो आपने नया नंबर जो सोचा है 1 से 10 के बीच में, ये आपका स्पेशल नंबर है। इस नंबर को कभी भूलना नहीं है। जो स्पेशल नंबर आपने अभी सोचा है, ये स्पेशल नंबर कभी भूलिएगा नहीं। इस नंबर को अब अपने मन में दुगना कर दीजिए, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके? जो भी आपने स्पेशल नंबर सोचा है उसको मन में दुगना कर दीजिए। अब इसमें 8 जोड़ दीजिए, हम्म, 8 जोड़ दीजिए, यानी कि 8 को ऐड कीजिए। किया। और अब जब आपके पास नंबर है बड़ा सा, उसको आधा कर दीजिए, यानी कि 2 से डिवाइड कर दीजिए उसमें। अब मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि इसके बाद आप सबके पास अलग अलग आंसर्स होंगे। जो आपके पास अभी नंबर बचा है उसमें से आप अपना वो स्पेशल नंबर निकाल दीजिए, यानी कि माइनस कर दीजिए वो स्पेशल नंबर जो आपने सोचा था। अब आप सब ने अलग अलग स्पेशल नंबर सोचे थे, तो मुझे नहीं पता कि कौन क्या निकाल रहा है। तो आप सब अलग अलग नंबर्स पे हो गए इस वक्त, मुझे नहीं पता कि कौन किस नंबर पे है, ठीक है? जो भी नंबर पे आप हो अभी, जो भी नंबर पे आप हो अभी, उसमें एक और ऐड कर दीजिए। कर दिया आप लोगों ने? हम्म, बस अब हम ये अपने लास्ट स्टेप पे हैं। अगर आपका फाइनल आंसर है 1, तो मन में लेटर सोचिए ए। अगर आपका फाइनल आंसर है 2, तो मन में लेटर सोचिए बी। अगर फाइनल आंसर आपका 3 है तो लेटर सी, 4 है तो डी, 5 है तो ई। उस तरीके से एक लेटर आ गया आपको, एक अल्फाबेट मिल गया आप लोगों को। अब उस अल्फाबेट से कोई भी एनिमल सोच लीजिए। एनिमल सोच लीजिए उस अल्फाबेट से। बस उस एनिमल पे फोकस कीजिए। एनिमल मेरे, अब वो एनिमल में आपका गेस करने की कोशिश करूंगा, उस एनिमल पे फोकस कीजिए। एनिमल के कलर पे भी फोकस कीजिए अगर कर सकते हो तो, उसका जो रंग है उस पे भी फोकस कीजिए। और आप लोगों को दिख रहा है ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, अक्षय लक्ष्मण। लेकिन अगर मैं इसे टर्न करूंगा तो इस पे लिखा है ग्रे एलिफेंट। लवली लवली लवली, 100% ट्रू। ग्रे एलिफेंट, ओके। सो बेसिकली इस तरीके की चीजें जो है मैं करता हूँ। और अब जो मैं आपको छोटी सी अपनी जर्नी बताऊंगा कि मैंने क्या किया लाइफ में, कैसे किया। दरअसल एग्जैक्टली यही वो ट्रिक था जो देखकर मैं प्रेरित हुआ कि माइंड रीडिंग करनी चाहिए, मेंटलिज्म करना चाहिए। क्योंकि किसी ने मेरे साथ ये किया था, वो भी वाया टेलीविजन, टीवी के थ्रू किया था किसी ने। और मैं हैरान हो गया था। मेरी उम्र आई थिंक उस वक्त 12 या 13 साल की थी, और मैं हैरान हो गया था कि मेरे साथ कोई चीज कैसे हो सकती है टीवी के थ्रू। मैं 5 साल की एज में मैंने शुरू किया मैजिक करना।
और 5 से 13 तक मैं मैजिक करता था, जो टिपिकल मैजिक के ट्रिक्स होते हैं। लेकिन 13 की एज से मैंने मेंटलिज्म जो है वो अपनी लाइफ में शुरू किया। उसको मैंने पढ़ना शुरू किया उसके बारे में, ये ट्रिक देखकर जो मैंने आपको अभी दिखाई। और आप लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हैं मेरी करियर की जर्नी जानने में कि ये कैसे मैंने क्या अप्लाई किया, बिकॉज आई बिलीव दैट इज द मोटिवेशन वी आर लुकिंग फॉर Yes, yes, of ओवर course, sir. Please हियर। share, please share. यस, तो बेसिकली मैंने ये एक चीज की कि जैसे ही मेरा एज जो थी वो 17 जब खत्म हो रही थी ना, हम सब ट्वेल्थ जब हमारा खत्म हो रहा होता है, उस टाइम पे हमको टीचर्स ने बुलाया और एक एक करके पूछा कि आप क्या करना चाहते हो ट्वेल्थ के बाद। और मैं भी साइंस में था, सब साइंस स्टूडेंट्स थे, तो सबने यही जवाब दिया कि हम इंजीनियर बनेंगे, हम मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं या हम बीएससी में जा रहे हैं। तो मैं अकेला था जिसने आके ये बोला कि मैं मास मीडिया की पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो मेरे को मेरे प्रिंसिपल ने कहा, क्यों, तुमको चाहिए कि तुम माइक लेके फिल्म स्टार्स के पीछे भागो मीडिया की तरह? तो मैंने बोला नहीं, मैं खुद एक स्टार बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मीडिया मेरे पीछे भागे, इसलिए मैं उनके राज जानना चाहता हूँ कि मीडिया में क्या चलता है। तो टीचर का कुछ अलग ही एक्सप्रेशन था। तो उस वक्त उनको लगा कि ये पागल हो गए, क्या बातें कर रहे हैं, जबकि मैं सीरियस था बोलते वक्त। तो बोलना मैं ये चाहता हूँ कि उसके बाद में ये हुआ कि मैं अपने ये शोज करता रहा, लोगों को दिखाता रहा स्कूल कॉलेज में भी। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि मैं टीवी पे कुछ क्रैक कर पाऊं या कुछ शोज ले पाऊं। उसके लिए मैं वीडियोस बना बना के काफी यूट्यूब पे डालता रहता था अपने बचपन से जवानी तक में। और उन वीडियोस पे एक बार नजर पड़ी यूएसए के एक क्रूज लाइन की जिसका नाम है कार्निवल क्रूज लाइन। सोचिए कनेक्शन कैसे बैठता है कि आपने सालों तक कुछ किया और उससे आपने कोई उम्मीद नहीं रखी, कोई मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, आपने कुछ ये नहीं सोचा कि पैसा मिलेगा तो ही मैं करूंगा ये। कोई मुझे पैसा दे भी नहीं रहा था उस वक्त उसके लिए। लेकिन काम क्योंकि अच्छा था तो एट द एज ऑफ 19 आई गॉट अ कॉल फ्रॉम यूएसए कि आपको यूएस आना है और हमारी जो क्रूज लाइन है कार्निवल, उस पे आपको हम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, आपको 153 शोज वहां परफॉर्म करने। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ पे आया और मेरी माँ ने मुझसे कहा कि नहीं ये तुमको नहीं जाना चाहिए। तो मैंने बोला क्यों? तो मैंने बोला नहीं, तुम अपनी ग्रेजुएशन खत्म करके ही जाओगे। तो मैं बोला अगर ग्रेजुएशन के लिए वेट करूंगा तो फिर तो ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी हाथ से। पर वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ा, ग्रेजुएशन खत्म की। लेकिन आप ये सोचिए कि ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद मुझे फिर से कॉल आया उन लोगों का और उन्होंने मुझसे बोला तो हो गया आपका ग्रेजुएशन खत्म हो गई। सो आई वाज सरप्राइज्ड क्योंकि मैंने उनको वही रीजन दिया था कि बिकॉज आई एम स्टिल इन कॉलेज एंड आई वांट टू फिनिश माय ग्रेजुएशन एंड देयर इज 2 more years। तो दे एक्चुअली नोटेड इट डाउन एंड 2 Wow. साल बाद कांटेक्ट उनका वापस आया मुझे। आई बिलीव वो दिखाता है कि इम्पैक्ट अच्छे काम का क्या होता है। फिर मैं यूएस गया, 1 साल वहां शोज किए एंड देन आई डिसाइडेड कि आई एम गोना कम बैक एंड मेक दिस इनटू माय फुल टाइम प्रोफेशन। तो मैं आप लोगों को एक कुछ चीजें अभी बताना चाहता हूँ जो जिसमें से शायद आप लोग कुछ सीख सको, आप लोग उसमें से कुछ निकाल सको, यूज कर सको। सबसे पहले कि ये जब मैं वापस आया यूएस से एंड आई डिसाइडेड कि अब मैं यही करूंगा, आई वाज क्लियर इन वन थिंग कि ये ऐसी चीज है जो मैं फ्री में भी करूंगा तो मुझे उतनी खुशी होगी जितना कि पैसे मिलने पर करने पर होगी। तो और आज मतलब विदाउट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, टुडे आई एम द हाईएस्ट पेड Wow. मेंटलिस्ट इन इंडिया। तो उसका थैंक यू सर, थैंक यू। उसका उसका मुझे लगता है कि रीजन यही है, उसका रीजन यही है कि आई एम डूइंग समथिंग दैट आई वुड लव टू डू इवन इफ आई एम नॉट गेटिंग पेड फॉर इट, इवन इफ आई एम डूइंग इट फॉर फ्री, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने यूएसए से जब वापस आया और मैंने डिसाइड किया कि ये करना है, तो मैं लोगों से कहता था कि यू कैन हायर मी, यू कैन बुक मी। इनफैक्ट जिस कार्ड के ऊपर मैंने आपको वो अभी ग्रे एलिफेंट लिख के दिखाया था, ये उस टाइम पे मैंने ये कार्ड प्रिंट कराया था अपने लिए। ये मैं स्पेशली निकाला अभी आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं ये लोगों को जाके बांटता था कि आप मुझे हायर कीजिए। और लोग पूछते थे आप क्या करते हैं, मैं कहता था मैं मेंटलिस्ट। और किसी को समझ में ही नहीं आता था कि मेंटलिस्ट क्या होता है। तो बोलते था जब हमको मेंटलिस्ट क्या है पता नहीं है तो हाउ डू वी हायर यू और बुक यू। तो आई डिसाइडेड ऑन वन थिंग
कि फॉर वन फुल ईयर, वन एंटायर ईयर, आई एम गोइंग टू डू ऑल शोज फॉर फ्री। मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कंपनीज को रिक्वेस्ट करूंगा कि आई विल कम फॉर फ्री, यू जस्ट लेट मी परफॉर्म ऑन योर स्टेज। एंड मैं वहां जाता था, वो शोज करता था फ्री में, बड़े बड़ी कंपनीज में फ्री में करता था। एंड मैं एक चीज मेक श्योर करता था कि मैं हर शो का जो है वीडियो निकाल के रखता था। एंड साल भर के एंड में मैंने वो सारे वीडियोस को इकट्ठा करके उनको चॉप 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 करके एक शोरील जैसी बना दी, और फिर उस शोरील को भेजना चालू किया, इंस्टेड ऑफ मी गोइंग एंड गिविंग माय कार्ड और एनीथिंग। लेकिन उसके लिए मैंने वो साल भर, ऑलमोस्ट एक पूरा साल मैंने फ्री में काम भी किया है। खुद ही ट्रैवल करता था ट्रेन से, बैग लेके, बस्ता लेके, या कैसे भी, वडाला से चेंज कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। तो ये सब करके, और जब वो शोरीज लोगों के पास जाने लग गई, और उस वक्त लोगों को लगा अरे ये क्या चीज है ये, हमको, क्योंकि उनको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल गया। तो आई एम श्योर हम सब लोग जो भी काम करते हैं, स्पेशली आप फोटोग्राफर्स हैं, आपको तो पता ही होगा कि विजुअल मीडियम जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम है। तो अगर आपको कभी किसी क्लाइंट से कोई बात करनी है, आपको कोई आइडिया पिच करना है, या कोई भी ऐसा मोड है जो आपको कम्युनिकेट करना है, कोई थॉट किसी से, लेकिन आपको वो आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो, या आपको लगता है ये आइडिया आपके दिमाग में क्लियर है, सामने वाले को क्लियर नहीं हो पा रहा है। आई बिलीव एक फिल्म मेकिंग की एक बहुत पुरानी एक कहावत है कि शो, so if you can do your work rather than telling, so I believe that will be great if you can do that. मत करो श्रेयस, श्रेयस मत करो ये श्रेयस। श्रेयस भाई, मत करो ये। आपकी फोटो बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोग अभी सुन रहे हैं। आई थिंक कोई, हाँ, कौन है ये? कोई श्रेयस जी है? श्रेयस, श्रेयस। ओके, हम सबको श्रेयस जी दिख रहे हैं अभी? क्या दिख रहे हाँ, हैं? श्रेयस जी। हाँ, वो श्रेयस ही है। श्रेयस, उसको बोलो भाई, श्रेयस को। अच्छा अतुल भाई उसको हटाओ। तो उसका वीडियो निकालो ना, उसमें क्या है, वो वीडियो बंद करो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप वो दूसरा कैसे अपने मॉनिटर को मैनेज करता है। आप जो होस्ट है या लीडर है वही कंट्रोल करे। अतुल भाई, हाँ बोलो। आने हटाओ तो जरा जो तो। શ્રેયસ ભાઈ તમે વિડિયો ઓફ કરો, શ્રેયસ ભાઈ તમે શેર કર્યું છે, બંધ કરી નાખો। શેર ને બંધ કરો, શેર ને બરાબર છે, शेयर ऊपर क्रॉस करो। अरे पर उनका ऑडियो भी म्यूट होगा, उनका ऑडियो भी म्यूट होगा, इसलिए शायद उनका आवाज नहीं जा रहा है। नहीं आप जरा ऑडियो ऑन करिए, उनका ऑडियो ऑन कीजिए, उनका ऑडियो नहीं जा रहा है। अतुल भाई रिमूव करो उसको। ना जामे तो वीडियो ऑफ करना कोई नहीं, उनके पास ऑडियो नहीं जा रहा है शायद, इसलिए आपका आ गया। हाँ सॉरी, आएगा अभी आ गया। आप बात कीजिए सर। अक्षय कुमार जी बात कीजिए। सर अक्षय लक्ष्मण जी। अक्षय लक्ष्मण जी। हम तो आपको अक्षय कुमार ही बुलाएंगे। अक्षय कुमार ही अच्छा बोल रहा है आप कहे तो मैं अक्षय कुमार बन रहा हूँ। नहीं तो मैं लक्ष्मण ही ठीक हूँ। तो प्लीज सब लोग आई होप मैं आप लोगों को बोर नहीं कर रहा था भाई। तो नहीं। ओके, हाँ, तो विजुअल मीडियम हमेशा बेस्ट है कुछ भी करने के लिए। तो मैं अभी उसके आगे की आपको इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। और मुझे एको आ रहा है अपनी आवाज का काफी। आई थिंक कोई स्पीकर पे सुन रहा है, किसी ने स्पीकर चालू किया। सबको इको आ रहा है, मेरे को भी आ रहा है। अभी हो गया। ओके, नाउ कमिंग बैक। तो मैंने आपसे ये कहा कि मैंने फिर स्टोरी बनाया, लोगों को काफी भेजा, उससे काफी लोगों ने बुक किया, बुलाया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज अब मैं आपको कहानी एक बताने वाला हूँ कि अच्छे काम का मतलब, उसका रिजल्ट क्या आता है, एक फेथ का क्या मीनिंग है। जैसा कि मैंने आपको कार्निवल का पहले बताया, क्रूज का, कि मैंने उनको बताया कि मैं नहीं आ सकता 2 साल के लिए, तो 2 साल बाद भी उन्होंने वापस बुला लिया। अब ऐसे ही एक दोबारा एक किस्सा ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, बट एक ऐसे लेवल पे हुआ कि आप लोग शायद हैरान रह जाएंगे। साउंड बंद हो गया है। आवाज बंद થઈ ગયો। आवाज सर अतुल भाई आवाज बंद થઈ ગયો। आवाज बंद થઈ ગયો। साउंड बंद हो गया। भाई खबर पड़े से બધા એક પછી એક नहीं कियो प्लीज। हाँ, होस्ट जी ने सबके म्यूट कर दिए थे, तो मेरा भी म्यूट हो कोई अनम्यूट नहीं करेगा अभी प्लीज।
अतुल भाई ने कंट्रोल करवा दो, हाँ। पता नहीं बोलो। यस यस ओके हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तो मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट में पार्टिसिपेट किया था और मैं उस शो में गया और मैंने एक ऐसा ट्रिक वहां किया जो आज तक मतलब वहां किसी ने कभी मेंटलिस्ट ही नहीं देखा था वहां। तो मैंने एक ऐसा ट्रिक वहां परफॉर्म किया जो उन्होंने कभी लाइफ में देखा नहीं था। और वो ट्रिक ये था कि मैं दो लोगों को खड़ा करता था, एक राइट में एक लेफ्ट में, और मैं राइट वाले को दोनों को बोलता था आंखें बंद कीजिए, और मैं राइट वाले के चिन को ऐसे टच करता था। तो लेफ्ट वाले को हंसी आती थी, तो मैं पूछता था आप हंस क्यों रहे? तो बोलते थे किसी ने मुझे अभी यहाँ टच किया। और तो ये मेरा ट्रिक था कि इधर टच करो वहां फील होगा, उधर टच करो यहाँ फील होगा। तो ये मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट में इसे किया। उसके बाद में ये हुआ कि मुझे तीनों जजेस ने बोला आपको, आपके लिए हाँ है, आप अगले राउंड में आइए वगैरह। उसके बाद में ये हुआ कि कुछ हफ्ता भर बाद मुझे कॉल आता है इंडियाज गॉट टैलेंट से, और मुझे बोलता है कि एक्चुअली ना आप सेकंड राउंड में आप नहीं हो, आप नहीं आ रहे। मैं बहुत हिल गया, मैं बोला क्या हुआ? तो बोला आपका एक्चुअली एपिसोड भी अभी एयर नहीं होने वाला है। मैं बोला क्यों? तो बोला कि वो जो आपने जो दिन पे शूट किया था उस दिन का पूरा कुछ हार्ड डिस्क या जो डेटा होता है उनका वो क्रैश हो गया है, तो पूरे दिन के जो भी उन्होंने शूट किए थे वो चले गए। तो नाउ दे आर नॉट एबल टू रीशूट इट। तो वो बोले कि आप अगले साल फिर से आ जाना। मैं बड़ा निराश हो गया। लेकिन अभी आप देखिए, वही बोल रहा हूँ, अच्छे काम का जो फेथ हमेशा रखना, अपना फेथ कभी अपने अच्छे काम में खोना मत। उसका अभी रीजन बताता हूँ। ये होने के कुछ 1.5-2 हफ्ते के बाद में मुझे फोन आया और मैं फोन उठाया, मैं बोला हेलो। तो उन्होंने कहा कि हेलो अक्षय लक्ष्मण हियर। मैं बोला यस। तो बोलते हैं हाँ जी, मैं आमिर खान के ऑफिस से बोल रहा हूँ, क्या आप न्यू ईयर के लिए फ्री हैं? आमिर अपने बंगलों में आपको बुलाना चाहते हैं परफॉर्म करने के लिए। तो मैंने सोचा कौन आमिर खान, क्योंकि कोई आमिर खान होगा, आमिर खान काफी कॉमन नाम है, काफी लोगों के नाम आमिर खान किसी का भी हो सकता है। तो मैं बोला आप किसकी बात कर रहे हैं, मतलब आप कौन है? बोले मैं आमिर खान का मैनेजर हूँ। मैं आमिर खान एक्टर सर, एक्टर आमिर खान। मैं बोला एक सेकेंड, आमिर खान के घर से मुझे फोन आ रहा है? तो बोले हाँ। मैं बोला आपको मेरा नंबर किसने दिया? तो उन्होंने कहा कि आपका नंबर हमको दिया है करण जौहर ने। मैं बोला एक सेकेंड, करण जौहर को मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो अब ये कहानी जो मुझे पता चली वो मैं आपको बताता हूँ। तो जिस दिन मैंने शूट किया था वो इंडियाज गॉट टैलेंट, करण जौहर इतना ज्यादा जो है इम्प्रेस हो गए थे वो टच वाला एक्ट देख के, पूरा एक्ट देख के, कि उस इम्प्रेस्ड होने के बाद में, उस शूट के तुरंत बाद वो डिनर करने के लिए आमिर खान के घर गए थे, क्योंकि उनका प्लान था। और डिनर करते करते आमिर ने उनको पूछा होगा कि अरे यार टेल मी यार कुछ नया हुआ तो बताओ यार, कैसा चल रहा है आईजीटी? तो करण जौहर ने उनको ये बोला, ओ गॉड देयर इज दिस गाय, यू नो ही केम ऑन स्टेज एंड यू नो ही वाज टचिंग वन पर्सन एंड द अदर वन फेल्ट इट। पता नहीं क्या है, मैजिक है, साइकोलॉजी, आई डोंट नो। तो इट वाज माइंड ब्लोइंग, नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट। तो आमिर खान ने उनसे कहा कि ओ अरे तो गिव मी हिज नंबर यार, आई विल कॉल हिम होम। तो करण जौहर ने बोला उनको कि आई एक्चुअली डोंट हैव हिज नंबर, तो यू नो लेट मी गेट इट। तो करण जौहर ने कलर्स चैनल में फोन किया और बोले कि एक कोई यू नो देयर इज दिस गाय, आई डोंट नो व्हाट ही वाज सेइंग, मेंटल समथिंग, आई डोंट नो, मैजिक, आई डोंट नो व्हाट, लक्ष्मण सम लक्ष्मण, यू नो कैन डू यू हैव हिज नंबर? तो बोले कि नहीं हमको नहीं मालूम किसकी बात कर रहा आप। अरे सम लक्ष्मण, यू नो ही वाज टचिंग सम पर्सन, द अदर वन फेल्ट इट। तो कलर्स ने फिर उस प्रोडक्शन में फोन किया, विजक्राफ्ट में। विजक्राफ्ट ने उस लोकल टैलेंट कोऑर्डिनेटर को फोन किया और फिर मेरा नंबर जो है उन्होंने निकाला, फिर विजक्राफ्ट को दिया, विजक्राफ्ट ने कलर्स को दिया, कलर्स ने करण जौहर को दिया, करण जौहर ने आमिर खान को दिया, फिर आमिर ने अपने मैनेजर से कॉल करवा के मुझे बुलाया। तो आप ये देखिए कि अच्छा काम जो होता है, क्वालिटी वर्क जो होता है, वो हवा, धूप और खुशबू की तरह होता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको उसमें फेथ होना चाहिए। अच्छे काम में लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे गारंटी हो कि इसमें मुझे पैसा मिलेगा तो ही मैं उतनी मेहनत करूंगा। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यू नो ये कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आमिर ने मुझे अपने घर भी बुलाया, मैंने उसके घर पे शो भी किया, एंड मैं टोटल 5 बार उसके बाद आमिर के यहाँ शो करके आया हूँ, 5 बार। एंड आमिर खान ने खुद मुझे एक वीडियो भी दिया है बना के कि
जहाँ पे वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो करियर ऐसे 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 जाता रहा ऊपर बिकॉज ऑफ गुड वर्क एंड कन्विंसिंग वर्क। एक ट्रिक आमिर को बहुत पसंद आई थी, अब मैं बोलने से अच्छा ना आपको करके दिखाता हूँ कि वो क्या है, ताकि आप लोगों को देख के थोड़ा एंजॉयमेंट हो होपफुली। ओके, यू रेडी? या तो इट्स नॉट अ माइंड रीडिंग ट्रिक बट इट्स अ टिपिकल मैजिक ट्रिक। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि लेट मी जस्ट टेक अ बलून, ठीक है? सो दिस इज जस्ट अ नॉर्मल बलून। ओके, सो आई एम गोना जूम ऐप पर पहली बार दुनिया में एक बलून फुलाया जाएगा आज। ओके, आई जस्ट होप ये फट नहीं जाए अचानक से। ओके, आई थिंक इट्स इनफ। तो मैंने आमिर खान का फोन मांगा, तो फोन हमारे पास नहीं है, तो मैं ये डेक ऑफ कार्ड्स को फोन की तरह यूज। ओके, नाउ वॉच मी। वेट अ मिनट, ऑल आई एम गोना डू, नहीं, ये पूरा Okay. स्क्रीन कर दीजिए ना, फुल स्क्रीन करिए ना उसको। अरे तू તમે તો કરી શકશો ને। अच्छा मैं करूं? आप लोगों को दिख रहा है सबको? यस 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 चल रहा है चल रहा है Okay. चल रहा है। ओके, ऑलराइट। तो एक बलून लिया मैंने और उनका आमिर का फोन लिया, तो दिस कार्ड्स इज लाइक द, एंड ऑल आई डिड वाज दिस, वॉच मी, सी दिस। And look at that. The phone, it's now inside the balloon. वाओ, Check it out. And ये ट्रिक मैंने उनके साथ किया था, उनको काफी अच्छा लगा था। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रिक बाय द वे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। या तो वेरी नाइस। उसके बाद थैंक यू तो ये एक ऐसा ट्रिक है कि एक काम करते हैं, अगर आप लोगों को सीखना है तो वुड यू लाइक टू लर्न दिस ट्रिक? इज इट, वुड यू लाइक टू नो? हाँ, ताकि आप अपने फैमिली के साथ ये कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ फायदा हो इस जूम मीटिंग में आने का एक म्यूजिशियन के साथ। तो आप लोगों को यही करना है कि एक बलून लेना है पहले, ठीक है? ऑफ कोर्स बलून को आपको स्ट्रेच करना है ताकि फटे नहीं, कुछ हो नहीं। यू हैव टू ब्लो इट एज क्विकली एज यू कैन। ओके, और ये थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लीजिए। ओके, काफी हो गया। और इस बलून को आपको ऐसे पकड़ के रखना है अपने उंगलियों के बीच में। ऑलराइट, कैन यू ऑल सी इट? फुल स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? फुल स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? यस 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 यस। ओके ओके, एंड किसी का फोन लीजिए, फोन या ये ऐसा कोई पैक ऑफ कार्ड्स टाइप का, एंड ऑल यू हैव टू डू इज इसको इस पे लगा के ऐसे रख के आपको पुश करना है डाउन। ओके, यू हैव टू पुश इट डाउन, और आपको प्रेशर देते रहना है और यहाँ से हवा निकालते रहनी है बलून की। ओके, और क्या होगा कि वो बलून ऑटोमेटिकली जो है वो रैप कर लेगा अपने आप को, वो रैप कर लेगा उसके अराउंड। ओके, सो it doesn't actually really go inside. It doesn't go inside, it's wrapped around it. You can see that? Yeah. So just do that, practice and have a lot of fun. अपने friends को fool कीजिए। So that's how it's done, and it's time for me to do something with one of you via the screen. ठीक है, किसी के साथ कुछ करते हैं। मुझे बताइएगा मेरे पास वक्त कितना है अभी, मेरे पास टाइम कितना है मुझे बताइएगा, ताकि मैं You have 20 minutes more. 20 minutes more. Okay. Yeah, okay, yeah, it doesn't matter. Okay. तो भरत जी आप किसी को नॉमिनेट कीजिए, आपके साथ करूं या किसी और के साथ करूं? किन के साथ मैं करूं? एक किरण भाई के साथ कीजिए। किरण शर्मा। किरण जी अपना माइक ऑन कीजिए। किरण जी कहाँ ऑन कर दिया मैंने, कर दिया। आपने ऑन कर दिया?
हाँ जी ऑन है। ओके, मुझे आपको ढूंढना पड़ेगा, कहाँ है किरण जी? किरण भाई हाथ वेव करो। नहीं नहीं, वो मुझे बहुत लोगों का वो करना पड़ेगा। अच्छा, मैं मुझे स्क्रॉल ले लो, करके ढूंढ। मुझे ले लो, चलो कोई बात नहीं। भरत जी को ले लो। हाँ ले लो, चलो ठीक है। ओके 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 ओके, ऑलराइट। हाँ, भरत जी मिल गए। तो भरत जी, आपको एक काम करना है अभी। मेरे पास ये पैक ऑफ कार्ड्स है, ठीक है? तो मैं कार्ड्स आप सब लोगों को दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो भरत जी ये देखिए, सारे इसमें अलग अलग कार्ड्स हैं। कैन यू सी इट? या सारे कार्ड अलग अलग हैं। ओके, सो भरत जी आप इसमें से एक कार्ड अभी चूज करने वाले हो, ठीक है? और आप एक कार्ड चूज करने वाले हो, और कैसे करोगे? मैं एक एक करके कार्ड्स नीचे रखूंगा और आपको स्टॉप बोलना है। जैसे ही आप स्टॉप बोलोगे मैं रोक दूंगा, ठीक है? ऑलराइट, स्टॉप। यहाँ पे या ओके, ये कार्ड देख लीजिए आप, क्या है? सब लोग देख लीजिए। सबने देख लिया? या ओके, नाउ इसको यहीं रहने देता हूँ, और ये सारे कार्ड्स जो हैं बाकी के, इनको इसके ऊपर रख देता हूँ। ओके, और अब मैं कार्ड्स को मिक्स भी कर देता हूँ। अब भरत जी आपको पता है कि आपका वो कार्ड कहाँ गया एग्जैक्टली? नहीं पता, राइट? नहीं। तो आपने पहले किरण जी को नॉमिनेट किया था, राइट? किरण जी अपना खाली माइक ऑन कीजिए। हाँ, हो गया ना? हो गया ना? किरण जी का माइक ऑन है। तो भरत जी ने अभी एक कार्ड निकाला, आप सबने देखा वो कार्ड कौन सा था? मुझे ठीक है, देखा ना आप लोगों ने? हाँ देखा था। हाँ देखा ना? हाँ, किरण जी अब वो कार्ड उस पूरे पैक में कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि कहाँ है, ठीक है? लेकिन किरण जी, मैं अब वो कार्ड का मैं इंफॉर्मेशन आपको भेज रहा हूँ अपने माइंड से। आप मुझे कोई भी एक नंबर बोलिए, 1 से 15 के बीच में, 1 से 15 के बीच में कोई भी नंबर बोलिए आप। मैं आपको भेज रहा हूँ एक नंबर, आपके मन में जो नंबर आता है बोलिए आप। बोलू अभी? हाँ बोलिए। 8। तो भरत जी, क्या आप हैरान होंगे और क्या आप इसको मिरेकल मानेंगे अगर आपका कार्ड एग्जैक्टली अभी 8वें नंबर पे निकला तो? यस ऑफ कोर्स। ओके, या लेट्स सी। ऑलराइट, रेडी? रेडी, वॉच मी। 1, अरे वीडियो चेंज करो। 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Oh, lovely. Good, very good. Thank you so much. And सारे कार्ड अलग हैं, सारे अलग हैं। Yes. Very nice, very nice. दिखा दीजिए कुछ ट्रिक। और एक ओके श्योर, चलिए कुछ और एक करते हैं, एक चीज आप सबके साथ में कुछ करते हैं। ये वाली ट्रिक भी तो सिखाइए सर। सर ये वाली ट्रिक भी सिखाइए ना। धंधो बंद कराओ सो, अश्विन भाई धंधो बंद कराओ सो। किसी के पेट पे लात मारने का। सर बिजनेस बंद कराएंगे। मैं आपको जाने से पहले और एक ट्रिक जरूर सिखाऊंगा, लेकिन ठीक है? उन्होंने कहा कि कुछ और भी करिए अभी। चलिए आप सबके साथ में कुछ करते हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, एक काम कीजिए, अपने दोनों हाथ सीधा रखिए, दोनों हाथ ओके, सामने रखिए दोनों हाथ। ओके, वॉच मी। अब अपने हाथ को ऐसे टर्न कीजिए, तो आपके जो पाम है वो बाहर होने चाहिए, ऐसे। ओके, अब हाथ को क्रॉस कीजिए और लॉक कीजिए, और हाँ इसे लॉक ही रखिए, और इसे तब तक आपको खोलना नहीं है जब तक लॉकडाउन खुल नहीं जाए। नहीं, इसको लॉक ही रखिए, ऐसे ही रखिए, हाथ को ऐसे ही रखिए। और ये वो बचपन वाला ट्रिक नहीं है, ऐसे वाला, सिर्फ क्रॉस करके लॉक रखना है। वॉच मी। कैन यू मूव योर लिटिल फिंगर? यस। कैन यू मूव योर इंडेक्स फिंगर? यस। नाउ गो लाइक दिस। Not possible.
करके देखिए, किसी का नहीं हो रहा है। इट्स ओके, आपको उसके लिए मैजिशियन बनना पड़ेगा। नाइस वन। तो आप सबके हाथ मेरा हो गया था। ये तो हाथ तोड़ने की, ये तो हाथ, हेलो संतोष फ्लेक्सिबल है। भरत भाई मेरा हो गया था। एक बार उनका पूरा वीडियो दिखा, उनका पूरा वीडियो दिखा दीजिए एक बार फिर से। हाँ से दिखा दीजिए, क्योंकि ओके। और जिसका हुआ था उसको हड्डी नहीं है हाथ में। अच्छा एक बार फिर से दिखा दीजिए बस। अभी आप देखते रहिए सब लोग। सर ये वीडियो हटाए, उनका वीडियो रखिए ना प्लीज। किनका वीडियो आ रहा है? जीतू है, नहीं जीतू भाई का वीडियो आ रहा है। भरत भाई आपका वीडियो आ रहा है। हाँ स्पीकर भी आप बोलो, दूसरा सब म्यूट कर लो। हाँ आप स्पीकर बोलना बंद कर, आप सिर्फ उनका वीडियो रखिए, उनका वीडियो रखिए। अरे उनका सब लोग वीडियो म्यूट कर, सब लोग को म्यूट कर। भरत भाई वीडियो उनका नहीं आ रहा है। हाँ मेरा नहीं आ रहा है। मेरा आ रहा है? अभी आ रहा है। हाँ ओके। चलिए और एक ट्रिक करते हैं अभी। किसी और के साथ करते हैं। बाकी सब लोग म्यूट कर लेना प्लीज। अच्छा अभी जिन्होंने ये कहा बाकी सब लोग, आप सर आपका नाम बोलेंगे? भरत। अच्छा नहीं, भरत जी के साथ तो अभी किया हमने ट्रिक। कोई और सिर्फ और कोई एक इंसान अपना अभी माइक अनम्यूट करेगा, तो आप लोग आप डिसाइड कीजिए भरत जी कौन करने चाहिए अनम्यूट। कौन? संजय जीतू भाई। अरे ट्रस्टी कोई लोग के खाली? नहीं कोई भी लो। अल्पेश ठक्कर। ओके अल्पेश जी। हाँ ओके संतोष नहीं, अल्पेश संजय शर्ट पहन के संतोष। अच्छा भरत संतोष करेगा। वो मैजिशियन ने गायब किया है शर्ट। चलो रेडी गायब किया है। कौन करेगा? अक्षय भाई। अच्छा संजय जी, ठीक है। हाँ जी। संजय जी करिए, ठीक है। बाकी सब अपना माइक म्यूट रखिए प्लीज। संजय जी आप अपना माइक ऑन रखिए। ओके। मैं संजय जी आपके साथ में मैं एक अलग टाइप का ट्रिक करने वाला हूँ। ये प्योर माइंड कंट्रोल है। ये बीच में किसका वीडियो? कौन आ रहा है बीच में वीडियो? बाकी सब अपने माइक को सिर्फ हाँ संजय जी ऑन रखिए खाली। ओके संजय जी आप तैयार हैं? आपके साथ में कुछ करता हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको कुछ भी करने से पहले दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए सारे कार्ड्स जो है हमारे अलग हैं, ठीक है? देख रहे हैं आप? स्लो दिखा रहा हूँ मैं, जितना स्लो हो सकता है ना? अलग हैं, साफ सुथरे हमारे कार्ड्स हैं, नथिंग स्पेशल अबाउट इट, ठीक है? कुछ भी खास है उसमें? कुछ नहीं है ना, बिल्कुल नॉर्मल साधारण कार्ड्स हैं। ओके और एक सेकंड, किसी और का वीडियो बीच में आ रहा है मुझे लग रहा है ना? हाँ अभी नहीं आ रहा, अभी ठीक है। आगे से आपको दिखा दिए और मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। सारे कार्ड जो हैं हमारे बिल्कुल सिंपल साधारण नॉर्मल कार्ड्स हैं, ठीक है? नथिंग स्पेशल अबाउट इट। ओके अब संजय जी मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि इन पत्तों में से कोई एक पत्ता ऐसा है जिसपे मैंने अपना नाम लिखा है, अक्षय, ठीक है? और अभी शायद इन्वर्टेड ये कैमरा में शायद वो उल्टा दिखाई दे, आई एम नॉट श्योर, बट कोई एक पत्ता ऐसा है जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है अक्षय, लेकिन आप में से किसी को नहीं पता वो पत्ता कौन सा है, ठीक है? तो संजय जी मैं अपने माइंड से कोशिश करूंगा कि आपके माइंड को कंट्रोल करूं और आपसे वही कार्ड सिलेक्ट करवाऊं जिस पे अक्षय लिखा है। ओके नाउ डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यू थिंक सो? ओके लेट्स सी। तो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्या करूंगा ना, आपको सबसे पहले ये पूछूंगा कि आपको एक अभी कार्ड सेलेक्ट करना है, तो आप कार्ड्स को ऐसे फेस अप सेलेक्ट करना चाहते हो या ऐसे फेस डाउन सेलेक्ट करना चाहते हो? कैसे सेलेक्ट करना चाहते हो आप? मतलब पत्ते तो मुझे पता नहीं चलेगा मेरे को। हाँ नहीं आपको फेस अप करना है। ओके फेस अप करना है। रेडी? संजय भाई आपका वीडियो आ रहा है। हाँ जी राइट संजय जी, ठीक है बराबर। हाँ जी संजय जी। हाँ तो मैं एक एक करके कार्ड्स को हटाता जाऊंगा, आपको जहां मर्जी मुझे स्टॉप करिएगा। ओके ठीक है। लेकिन ये कार्ड का वीडियो आपको दिख रहा है सामने, नंबर दिख रहा है? हाँ लेकिन मेरे को आपका कार्ड का वो नंबर से फर्क नहीं पड़ता है। आई हैव टू मेक यू। संजय जी आप मत बोलो तो आपका ऑडियो वीडियो नहीं आएगा, आप मत बोलो। ओके खाली अक्षय जी को बोलने दीजिए। फुल स्क्रीन एमનું જ રાખો ને, અક્ષય ભાઈ નું જ રાખો ને ફૂલ સ્ક્રીન। हाँ कोई नहीं बोलो प्लीज। ओके ऑलराइट। तो संजय जी जहां आपकी मर्जी
आप मुझे इस वक्त सिर्फ स्टॉप कहिएगा, जिधर भी आपको बोलना है वहां मैं स्टॉप कर दूंगा। स्टॉप स्टॉप। यहाँ पर ये वाला कार्ड या इससे पहले वाला? ये वाला ये कार्ड। वाला, ये वाला। ओके ओके, ये वाला ना। एंड आपको इतने सारे कार्ड्स मैंने दिखाए, ठीक है, और मैंने आपको सारे कार्ड्स जो हैं एक बार वापस दिखाता हूँ। पीछे से भी आपको ठीक है। सारे कार्ड्स दिखाए मैंने, है ना, सब दिखाया, और आपने मुझे सिर्फ इस कार्ड पे स्टॉप बोला, राइट? और यही एक राइट। ऐसा कार्ड है जिसके पीछे मैंने अपना नाम लिखा है, अक्षय। वेरी नाइस, थैंक Very यू, nice, very nice. थैंक यू, थैंक यू, गुड गुड गुड, क्वाइट थैंक यू सो मच। एंड और किसी कार्ड पर भी, और किसी कार्ड पर भी मेरा नाम नहीं है। देखिए, किसी भी कार्ड पर कहीं से भी उठा लीजिए, कहीं पर भी मेरा नाम नहीं है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आई थिंक अभी एक वक्त आ गया आप लोगों को एक ट्रिक सिखाने का, अगर आपको सीखने का बिल्कुल भी मन हो, शौक हो। लेकिन वो सिखाने से पहले, वो ट्रिक सिखाने के बाद मैं चला जाऊंगा। आई थिंक अभी कितनी देर है हमारे पास भारत जी? 5 मिनट्स। 5 मिनट्स। तो वो मेरे लास्ट ट्रिक सिखाने से पहले, अगर आप लोगों के मुझसे कोई सवाल हैं, आप पूछना चाहते हैं, यू वांट एनी Q&A, तो अगले 2 मिनट में लेट्स डू दैट। उसके बाद जाने के वक्त आखिरी के 2 मिनट में मैं आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। तो कोई कुछ पूछना चाहता है मुझसे तो प्लीज यू कैन गो अहेड। मैं किरण शर्मा, मैं पूछना चाहता सर पूछिए सर, पूछिए ना सर। आप जो बोले फेस माइंड करते हैं, हाँ, तो मैं अभी, आप मुझे देख रहे हैं? हाँ देख रहा हूँ, है ना? तो हाँ। मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो उसके बारे में आप बता देंगे? सर जो माइंड रीडिंग होता है ना, वो ऐसे काम नहीं करता है कि आप वो कोई चैलेंज की तरह या वैसे काम नहीं करता है। वो माइंड रीडिंग इज लाइक अ कम्युनिकेशन। जैसे बातों से हम कम्युनिकेट करते हैं, तो दो लोग माइंड टू माइंड भी कम्युनिकेट करते हैं। तो जैसे कि जैसे कि आपका जो दिमाग वो एक सेफ की तरह है, जो तिजोरी होती है, जिसको आप हमेशा लॉक ही रखते हो। तो जब तक आप वो थॉट को निकाल के मुझे दोगे नहीं, तब तक मुझे मिलेगा नहीं। इट्स समथिंग लाइक दैट। और वो थॉट को हम निकाल के देते कैसे हैं? बोल के देते हैं। अब माइंड रीडर क्या करता है? माइंड रीडर ना कोशिश करता है आपके दिमाग में जितना ज्यादा घुस सके, जितना उसको समझ सके, उसको समझ के आपको बताए। जैसे कि अभी मैं आपको देख पा रहा हूँ, तो आपको देख के मैं आपको ये बता सकता हूँ आपके बारे में किरण जी। आई थिंक आपको चलेगा? मैं वर्ड नहीं बता रहा हूँ, मैं आपके बारे में कुछ बता रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा गलत हो या सही हो। मैं आपके बारे में बता सकता हूँ कि आप 2 एक्सट्रीम पर्सनालिटीज हो जो एक ही माइंड के अंदर कैद हो। आप या तो एकदम लाइफ ऑफ द पार्टी रहते हो, आप एकदम माहौल बना देते हो, या तो आप एकदम चुप रहते हो। आप बीच वाले हो नहीं, आप ऑडियंस वाले आदमी नहीं हो। आप या तो आप मेन शो हो आप, या तो फिर आप हो ही नहीं, या तो आप एकदम गायब हो, एकदम डल हो। ओके, इज दैट, वुड दैट बी राइट? एकदम करेक्ट। ओके, ऑलराइट, हाँ ठीक है। और आपके अंदर मुझे जो देख के आपको पता चल रहा है, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा थॉट प्रोसेस है कि आप जानते हो कि कई बार आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन वो आपको पहले ही पता चल जाता है कि ये कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन आप बोलते नहीं हो उसको लोगों में, ताकि लोगों में ये नहीं हो जाए बात, लोगों को ये इंप्रेशन, क्योंकि लोगों को पहले आपका ये इंप्रेशन पड़ चुका है कि यार ये तो ना बोल के कुछ नस्तर लगा देते हैं, ये ना अच्छे माहौल में ना ये भंग डाल देते हैं बोल के कि यार ये नहीं होगा। लेकिन आपने बोलना बंद कर दिया, लेकिन आपके अंदर अभी भी वो बात है कि आपको कुछ बुरा होने से पहले आपको आभास हो जाता है उस चीज का। Would I be right if I say that? Correct. Okay, so I can keep going on, but yeah, so that's what a mind reader does. तो सर मैं आपको शॉर्ट में बता दिया काफी चीजें। Thank you, sir. Thank you. Anyone else has any other questions? तो उसका हम जवाब दे देंगे। किसी को? No one? चलो, good. Can we conclude?
Okay, so let's conclude then. अक्षय जी, thank you for joining us. Okay, तो और एक ट्रिक बता दो। ट्रिक हाँ, अभी एक ट्रिक बताने वाला था। हाँ, ट्रिक बताता हूँ मैं आप लोगों को, आपको मैं सिखाता हूँ फिर वो कैसे करना है, ठीक है? ऑलराइट, तो हियर्स द थिंग, ये कार्ड की ट्रिक है जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ओके, आर यू गाइस रेडी टू लर्न? ओके, तो देखिए ये ट्रिक बेसिकली ये, हाँ, कैन यू ऑल सी मी? तो देखिए ये ट्रिक बेसिकली ये है, आपको मेरे हाथ दिख रहे हैं खाली, ओके, यू कैन सी माय हैंड्स, ऑलराइट, एंड अब जो है आपको ये देखना है कि एक कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ स्पेड, इस कार्ड के ऊपर नजर रखिए अपनी, ओके, नजर रखिए, ये देखिए कार्ड इज गॉन। और अब मुझे अगर उस कार्ड को वापस लाना है तो देखिए मेरा हाथ खाली है, आपको कार्ड दिखाई दे रहा है ना, 2 ऑफ स्पेड, ये देखिए, तो मैं आपको हाथ की चालाकी है, हाथ की चालाकी है, तो मैं आपको जानना है कि यह हाथ की चालाकी कैसे हुई, कैसे की? करेक्ट। आप जानना चाहते हैं? श्योर। तो एक बार फिर से उसका जो नमूना मैं आपको वापस पेश करता हूँ। देखिए हाथ खाली है मेरा, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, एक कार्ड है 2 ऑफ हार्ट, ओके, वॉच मी। तो चलिए आप लोगों को मैं सिखाता हूँ, सीखने की आप लोगों की बारी है। तो आपको उसके लिए करना ये है कि एक पैक ऑफ कार्ड आपके घर में अगर होगा, ताश के पत्ते, ऊनो कार्ड्स, कुछ भी चलेगा इसके लिए, तो आपको ये 2 स्टेप में करना है। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको ये आगे के कार्ड को ऐसे आगे पुश करना है, ओके, यू कैन सी, पुश करना है उसे, और फिर आपके हाथ के ये हिस्से से ये वाले कार्ड को आपको पीछे पुल करना है, ऐसे, ठीक है। जब पुल हो जाएगा पूरा, ये सब पुल हो जाएगा, तो ये पुल होने के बाद आपको इस पत्ते को इसके ऊपर रख के कवर करना है। तो बेसिकली जब ये कार्ड चेंज हो रहा है तो बेसिकली इसके नीचे वाला कार्ड ऊपर आ रहा है, ओके। तो इसको ये एंगल से, सॉरी, उसको आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ, हाँ, तो उसको अगर आपको मैं ये एंगल से दिखाऊं तो आप लोगों को शायद अब ट्रिक समझ में आएगा। ये देखिए, करेक्ट, ओके, अब उसी चीज को आगे से देख लीजिए, करेक्ट, परफेक्ट, देखा आपने? So yeah, so that's how you do it. I hope you enjoyed watching that. Yes, thank you very much. Thank you. Thank you. सर एक बात